courses are also done by Madam. She is currently practicing as an Ayurvedic gynecologist at Thane since 2001 and running a Panchakarma clinic as well, doing all minor and major gynec surgeries and deliveries. She is the president of Ayurved Vyaspit Thane branch, is a BEC member of FPAI and Rotary Club of Thane Metro. She is the ex-lecturer, ex-reader and ex-professor from YMT Medical College for 17 years in Gynec and Obstetric Department of YMT College, Kharghar. Madam has wrote many articles in local newspapers and magazines as well. Appeared on television, Doordarshan, G24 Taas, 7-star care channels. Live and recorded shows have been performed by Madam as a guest speaker there as well. She has many achievements and awards to her name. To mention a few, she is a gold medalist from BAMS October 96 Pune University batch. Vaidya Khadiwale Trust Vaidya Lakshmibai Borwankar Shri Vaidya Puraskar in 2017. She is the editor of book PCOD published by Ayurved Vyaspit. She has many publications to her name. To mention a few, clinical evaluation of spermatogenic activity of the root extract of Ashwagandha Withania somnifera in oligospermia males, a pilot study. Vaidya Ambriye D. Landge S. Dongre P. Pragna Aptikar Madam, Kulkarni Madam and Dongre Sir, to mention a few who are related to her work. Evidence-based complementary and alternative medicine 2013 publication is in ECAM as well. Efficacy and safety of KSM 66 Ashwagandha Withania somnifera Dunai in oligospermia with or without erectile dysfunction, a double-blind randomized placebo-controlled study was also performed under her guidance. A case report titled Effect of Ayurvedic Medicines on Thin Endometrium Asherman Syndrome at 8th WAC Ahmedabad World Ayurved Congress Ahmedabad as well. Her special interests lie in Ayurveda and infertility, PCOD, endocrinal disorders and many more. Madam is a very successful practitioner, a very nice and good surgeon and a very nice person as well. She has been accepting our request for many lectures on Shreyas e-learning Academy as well, and we are highly obliged for that. Her today's topic is hemorrhoids in antenatal and postnatal period. I will request Madam to kindly start her lecture. Thank you very much. Thank you, Dr. Rushikesh, for kind introduction. I express my thanks towards Shreyas e-learning Academy for giving me again and again opportunities to share my views. So today we are discussing about the hemorrhoids in antenatal and postnatal period. As you know, I think many lectures already have been taken here. My lecture is in the last week. So we will have a rapid recap regarding anatomy and some other required features, but related to antenatal and postnatal period. So to start with, as you know, hemorrhoids are the swollen veins and engorged with blood. That is the kind of varicose veins. Many women experience them for the first time during pregnancy or the postpartum period for several reasons, like as a increased amount of progesterone or internal pressure because of fetus and chronic constipation. So they can the hemorrhoids can range from the irritating to quite painful. But the good news is that for the most part of the hemorrhoids are not serious one. Most of the times they get cured with diet modification and some treatment or some local treatment, etc. Hemorrhoids may simply feel itchy, but they also can be painful. In some cases, particularly following bowel movement, they can cause rectal bleeding.
So when patient comes to you and they had the history of hemorrhoids before pregnancy, there is a chance that they will come back post delivery. So the history is important. Now let us start with some anatomical information about the rectum and the uterus. So look at the picture. So the anal canal is the terminal part of large intestine. As you know, it begins with the rectal ampulla, narrows and ends at the anus. It is surrounded by the internal and external anal sphincters. The canal is collapsed except during passage of feces. Both sphincters must relax before defecation can occur. As you know that the internal anal sphincter is an involuntary sphincter surrounding the superior 2/3 of the anal canal. And this sphincter is tonically contracted most of the time to prevent the leakage of fluid or the flatus. And however, it relaxes temporarily in response to the distension of the rectal ampulla by feces or gases. The external anal sphincter is large it is voluntary sphincter. The internal sphincter is involuntary, but the external anal sphincter is large voluntary sphincter that forms the broad band on each side of the inferior 2/3 of the anal canal. So you can see here the anal columns. So what are the anal columns? Internally, the superior half of the mucous membrane of the anal canal is characterized by a series of longitudinal ridges. These are ridges called as the anal column. The inferior end of that anal columns are joined by the anal valves. The anorectal junction indicated by the superior end of the anal columns. The inferior limit of the anal valves forms an irregular line, that is the pectinate line. You can see here in the picture that indicates the junction of the superior part of the anal canal. The anal canal superior to the pectinate line differs from the part inferior to the pectinate line in its arterial, venous and nervous supply and the lymphatic drainage also. So this point is important in the in the surgeries of CA rectum. This is not actually important part, but I think we should go with some information about anatomy in flow. The key function of the anal canal is that is performed by the sphincter. So इस सब anatomy में the sphincter plays an important role, which comprises an internal smooth muscle ring and outer striated muscle ring. This sphincter, which is under both autonomic and somatic nervous control, enables the defecation to occur. इसका जो अभी हम नर्वस कंट्रोल के बारे में बात किया हमने, इसका रिलेशन आता है जब हम आयुर्वेदिक संप्राप्ति देखेंगे, तब बात फिर करेंगे. Then you can look at the second picture also. You can see the position of the uterus in relation with the rectum. So the cervix, and that is the lower 1/3 of the uterus, and the total vagina is in contact with the rectum. So only rectovaginal pouch is there, that is the peritoneal coverage. Otherwise it is in immediate contact with the vaginal canal and the cervix. So here you can see the blood supply of both rectum and the uterus. As you know, both the parts get the blood supply from the internal iliac artery, which is a branch of common iliac artery.
So here the rectal artery is also known as the hemorrhoidal artery. The superior rectal artery supplies the whole of the rectum and the upper part of the anal canal, and the inferior rectal artery supplies the lower part of the anal canal and of the rectum, and its supply may extend up to the peritoneal reflection of the rectum. The small middle rectal artery may supply only the muscle coats of the rectum. Then the arteries are accompanied by the veins, and the tributaries of the superior rectal vein drain into the portal vein, whereas the middle and inferior rectal veins drain into the internal iliac vein. And again they form the inferior vena cava and again goes through the liver. So hence the anorectal region is a site of portosystemic anastomosis. So in pregnancy, as the pregnancy advances, the pressure of the fetus is on the common iliac artery, abdominal aorta, internal iliac artery. So how the pressure is a major causative factor in developing hemorrhoids in pregnant situation. So this is the reason, as the anorectal region is a site of portosystemic anastomosis. The blood supply is huge. So now you can look at the picture where we get the position of the fetus and the rectum in advanced pregnancy. So for pregnant or postpartum women, hemorrhoids are often as a result of stress of the perineum in the months before and during delivery. Look at the picture. Just look at the fetal head and the rectum. Veins work like valves to push blood back up to the heart, and when those valves become weakened, they can swell with the blood. So because of pressure, it can happen. So you can probably imagine how the stress of carrying baby and then pushing a baby out during vaginal delivery can cause the veins to pop out. Additionally, all of the hormones going through the body during pregnancy and the birth, they also affect these veins. The progesterone causes vasodilatation in pregnant women. Now you can understand why the patient have urges to have bowel movements in the 9th month or the during delivery, during labor. It is due to the pressure of the baby's head against the rectum. Look at the picture. So for several reasons, new mothers are also prone to experience constipation after birth. So because of this pressure also, the veins get torn or veins get tortuous, or sometimes the sphincters get involved during the during normal delivery. The perineal tear can happen. Then in the episiotomy or during episiotomy wound healing, new mothers also prone to experience constipation after birth, because it starts a vicious cycle of not to go for defecation because of fear of pain of healing wound. There may be perineal tear or the episiotomy. So sometimes the women have fear in their mind to go for defecation, so they retain the stool. So after retaining the stool, they hardens and then experience constipation, and because of this, they may face hemorrhoids, and this vicious cycle goes on and on. Hemorrhoids are the swollen veins in your anus and the lower rectum that is similar to varicose veins. So they can develop inside the rectum, called as the internal piles
or hemorrhoids, or under the skin around the anus, those are the external hemorrhoids. Signs and symptoms of hemorrhoids usually depend on the type of the hemorrhoid. So here you can see the external hemorrhoids. Only the symptoms are like itching or irritation in your anal region, pain or discomfort sometimes, swelling around your anus, bleeding sometimes. Internal hemorrhoids lie inside the rectum. You usually can't see or feel them, but the main feature is the painless bleeding during bowel movements. So patient may comes to you with this typical or particular symptom. Hemorrhoid to push through the anal opening, resulting in pain and irritation. Sometimes it can be prolapse or protruding hemorrhoid. Look at the picture where you can find the grades of the internal piles. That is the grade 1. It just protrudes out of the canal but does not prolapse completely. There is a chance of bleeding. Then grade 2, it bulges out of the anal canal and straining. While straining during the stool or defecation, it comes out and spontaneously return back inside after the pressure goes back. In the 3rd grade, hemorrhoids may protrude out from the anal canal without any straining. And grade 4 is the internal hemorrhoid always stays protruded or prolapsed. If the patient comes to you for PR bleeding during pregnancy or in the postpartum period, don't assume that the rectal bleeding is only due to the hemorrhoids. Especially if the patient has changes in the bowel habits or their stool changes in color or in consistency, detailed history should be taken, because rectal bleeding can occur with other diseases also. I am not taking that part, just कह रही हूँ, differential diagnosis में यहाँ नहीं ले रही हूँ. Rectal bleeding can occur with other diseases like Crohn's disease or the CA colon, CA rectum or ulcerative colitis, etc. Hence, the detailed history and local examination is necessary. If the patient has large amount of rectal bleeding, lightheadedness, dizziness or faintness, then emergency treatment is needed. Sometimes the patient may have thrombosed hemorrhoids. Patient comes with severe pain, swelling, inflammation or hard lump near your anus. So, in short, we will see the causes. One of the cause is the being pregnant, that is pregnancy is one of the cause, or the prolonged delivery, normal delivery is also one of the cause. Because of these, the veins around the anus tend to stretch under the pressure and they may bulge or swell. So, why there is increased pressure in the lower rectum? So, there are certain reasons due to which the pressure is increased in the lower rectum, like pregnancy, obesity, sitting for long periods in the toilet, eating low fiber diet, regular heavy lifting, etc. So in pregnancy, you should advise the patient that to avoid such thing so that the pressure is not get increased in the inner lower rectum. As the age increases, the risk of hemorrhoids are increases. Hence, in elderly gravida patients, muscle tone is less and the risk of piles is increases. This happens because the tissues which support the veins in your rectum and anus can weaken and stretch. Hence, in pregnancy, the baby's weight puts pressure on the anal canal, and if the patient is elderly primary or elderly gravida, she has more chances of developing piles.
Now I am talking about the complication in pregnancy or in postnatal period. In both conditions, the patient, in majority of the patients are already having anemia or the low hemoglobin levels because of high intake by fetus, high intake of iron from the mother. The fetus or the baby जो है वो it's a parasite, जितना भी hemoglobin मदर के अंदर है वो खींच के ले लेता है. और in addition to this, if the patient is facing hemorrhoids or the bleeding hemorrhoids, then she can develop into anemia. Chronic blood loss from hemorrhoids may cause anemia. Then strangulated hemorrhoid, if it is there, then the patient may suffer from extreme pain. So there are certain preventive methods explained in modern science, which are also explained in our Ayurveda as well. You can tell the patient to follow these rules so that they can prevent hemorrhoids. The first is, the best way to prevent hemorrhoids is to keep your stools soft so that they can pass easily, so that the intra-rectal pressure does not increase. So high fibrous food, plenty of fluids, do not strain, go as soon as you feel urge, exercise, avoid long periods of sitting. So ये सब हमारे अत्यासन, वेगावरोध, ये सब जो हेतु है उससे ही मिलते जुलते हैं, वो बाद में देखने वाले हैं हम. So these are जनरल रूल्स जो सबको ही फॉलो करने हैं, तो प्रेग्नेंट लेडी को भी फॉलो करने हैं, हमें उनको ये जरूर बताना है. और ये जो ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स है उसमें से जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए ये लिया है. So normally we don't do the surgery in the pregnant condition, but we can go for such kind of surgeries in postpartum period after 3 months of the delivery, if necessary, for the prolapsed hemorrhoids. Otherwise, no surgery is needed. And in pregnancy, जितना हो सके हम डाइट एंड न्यूट्रिशन काउंसिल करके उसके ऊपर ही ट्रीटमेंट ज्यादा रखते हैं. देन वी कैन यूज टॉपिकल मेडिसिन्स टू रिलीव द पेन, देन यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स. सो ये इस प्रकार से ट्रीटमेंट करके हम प्रेगनेंसी में पेशेंट को रिलीफ जरूर दे सकते हैं, सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं. So now हम जो पार्ट हम सुनने के लिए आप आए हैं, दैट इज जो आयुर्वेदिक पार्ट है, ये सब पेशेंट नॉर्मली करके आता है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है जब, तो हम क्या अलग कर सकते हैं, तो ये हमें जरूर देखना है. जैसे कि आपको ये सब निरुक्ति वगैरह तो हो गई होगी बाकी के पहले के लेक्चर में. जैसे अभी अगर हम चरक संहिता देखें तो उसमें उदर रोग चिकित्सा के बाद अर्श चिकित्सा आई है, बिकॉज ये सब जो रोग है ये मंद अग्नि के कारण होते हैं. तो अरिवत प्राणान चूर्णाति इति अर्षः, शत्रु के समान प्राणों को जो नष्ट करता है उसे अर्श कहते हैं. और वाग्भट भी जैसे कहते हैं कि माउस कीलका, माउस के कीले की तरह है और गुद मार्ग का निरोध करते हैं. तो इसे अर्श कहते हैं. अगर हम देखें, अभी जैसे हम एनाटॉमी देखी हमने, तो उसी हिसाब से अगर आयुर्वेद की एनाटॉमी हम देखें तो शारीर रचना के हिसाब से गुद जो है वो क्या है, अर्श का जो अधिष्ठान है. तो अधिमांस क्षेत्र जो कहा है कि ये अर्श जैसी जो तैयार हो जाते हैं, अधिमांस तैयार हो जाते हैं, उसमें गुद प्रथम है.
लेकिन उसके साथ साथ अपत्य पथ है, नासिका है, कर्ण है, नेत्रवर्त्म है, ये सब जो है मांसघटित अवयव है, जिसमें अधिमांस जो है वो अधिमांस की वृद्धि हो सकती है। तो सर्वेशाम च अर्षसाम अधिष्ठानम मेदो मांसत्वक च, तो ये सब अधिमांस के जो क्षेत्र बताए गए हैं उनका अधिष्ठान जो है उसमें मेद, मांस और त्वचा, ये तीनों का समावेश होता है। और अगर हम देखें तो गुद जो है वो सद्य प्राणहर मर्म है, मांस मर्म है, कर्मेंद्रिय है, और इंद्रिय होने के पायु इंद्रिय जिसे कहते हैं ये पायु इंद्रिय है। वाक पाद, वाक वाणी पाद पायु उपस्थ, तो पायु इंद्रिय में ये आता है। तो इंद्रिय धारण करना ये प्राणवायु का काम है, जो उसका नियंत्रण है। तो स्फिंक्टर का कंट्रोल जो है, जो इधर अभी हमने जो स्फिंक्टर्स हमने देखे दोनों, तो इंटरनल स्फिंक्टर जो है ये इनवॉलेंट्री है, इसके ऊपर प्राण का कंट्रोल रहता है, और जो नीचे का है उसके ऊपर अपान का रहता है। साक्षात विसर्जनी जो हमने अभी गुद प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी ये जो हमने कहा है, तो विसर्जनी से आगे अपान वायु का क्षेत्र चालू होता है, अपान वायु का कंट्रोल उसके ऊपर रहता है। सो वेग काले धारण नहीं करना है और अवेग काल में धारण करना है मल को। ये दोनों जो चीजें हैं ये प्राण और अपान दोनों के बैलेंस के ऊपर होती है। देन ये मातृज अवयव है, रक्त प्रधान अवयव है, जैसे हमने अभी देखा था कि ब्लड सप्लाई जो देखा था, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई ये दोनों बहुत होते हैं इसमें, इसीलिए ये सद्य प्राणहर मर्म है। अगर इसमें आघात होता है तो ब्लड लॉस बहुत बुरी तरीके से होता है। इसीलिए कभी भी हिमोरॉइड्स हो और उसको ब्लीडिंग हिमोरॉइड्स है, रक्त अर्श है, तो पेशेंट को बहुत वीकनेस, दौर्बल्य फील होना, क्योंकि साक्षात रक्त जीवइति स्थिति, रक्त का गमन बहिर्गमन हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें ट्रीटमेंट करने के टाइम में हमें हमेशा याद रखनी है। अभी जब प्रेग्नेंट लेडी हमारे पास आती है, प्रेगनेंसी में आती है या पोस्टमार्टम सूतिका काल में आती है, तो गर्भाशय भी बहुत ये मर्म सदृशी अवयव है, और उसमें भी बहुत डिलीवरी के दौरान बहुत रक्त का स्रुति होती है। नॉर्मल डिलीवरी भी हो, कितना भी हम प्रयास करें, आधा लीटर या 1 लीटर तक ब्लड लॉस होता ही है। तो रक्त स्रुति इतनी होती है, रक्त प्रधान अवयव में से रक्त स्रुति होती है, तो वात का प्रकोप ये दोनों अवस्था में ज्यादा रहता है। तो अग्निमांद्य की स्थिति भी है, वात प्रकोप की स्थिति भी है, गर्भिणी अवस्था में भी है, सूतिका काल में भी है, और साक्षात गुद भी है और योनि भी है, वो अपान क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार सभी का अगर हम विचार करें तो इसमें अर्श का विचार हम जब प्रेगनेंसी और सूतिका काल में करते हैं, गर्भिणी और सूतिका काल में, तो ये सब चीजों का हमें चिकित्सा करते समय जरूर विचार करना, हमें ध्यान में रखना है। अभी अगर आप देखें संहिता, तो काश्यप संहिता में सूतिका रोग आए हैं, गर्भिणी के रोगों के बारे में भी बहुत सी वर्णन आए हैं, लेकिन उसमें कहीं भी अर्श गर्भिणी का उपद्रव या सूतिका में उपद्रव स्वरूप में आता है ऐसा नहीं दिखाई देता है। कहां पर भी हमें ऐसे श्लोक या रेफरेंसेस नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम चरक चिकित्सा स्थान अर्श अध्याय देखें तो उसमें हेतु स्वरूप में हमें स्त्रीणाम च आम गर्भभ्रंशात, जैसे गर्भस्राव, गर्भपात होना, गर्भोत्पीड़नात्, विषम प्रसूति, जैसे प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ये सब, ये 3 जो है ये हमें हेतु जो है वो स्त्री के गर्भिणी या प्रसव के काल के दरमियान के हेतु हमें जरूर इसमें मिलते हैं। लेकिन काश्यप संहिता में जो कि खासकर
स्त्रियों के लिए लिखी गई या कौमारभूत्य में या स्त्रियों के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण संहिता है, इसमें हमें ऐसे हेतु या फिर सूतिका रोग में या गर्भिणी रोग में कॉम्प्लिकेशंस या उपद्रवात्मक रूप में जिसमें गर्भिणी और सूतिका होना एक हेतु स्वरूप है, ऐसा हमें उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमें चरक चिकित्सा स्थान में ये 3 हेतु अगर मिलते हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि जो स्त्री की गर्भिणी अवस्था, प्रसव अवस्था बिना सायास हो, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम अगर नहीं है, उसकी अग्नि की अवस्था और वायु की अवस्था अगर अनुलोम में रही है, अग्नि प्रदीप्त अवस्था में है, तो वो स्त्री को सगर्भावस्था दरमियान या सूतिकाल के दरमियान अर्श नहीं होते हैं। अर्श किसे होते हैं? जिसकी विषम या होते हैं या फिर होने की संभावना ज्यादा है, जिसमें विषम प्रसूति है, हिस्ट्री है, गर्भोत्पीड़न है या गर्भस्राव गर्भपात की हिस्ट्री है। और उसके साथ साथ ये जो बाकी के भी हेतु है, बहुत से मैंने लिए नहीं है, बहुत बड़ा श्लोक था, आप देख सकते हैं चरक चिकित्सा स्थान 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में। जैसे कोई गर्भिणी स्त्री या सूतिका स्त्री सतत गुरु मधुर शीत अभिषंध्य बहुत विदाही या विरुद्ध अन्न अजीर्ण होने पर भी खाना है और ज्यादा खाती है, असात्म भोजन है, अति व्यवहार है, दिवास्वाप, अति आसन, ज्यादा देर बैठना, जैसे कि अभी ऑनलाइन सबका काम चालू है, तो अभी बच्चे भी एक समय से 4-4 घंटे 5-5 घंटे एक ही कुर्सी पे बैठे रहते हैं। जिसका वर्क फ्रॉम होम है या फिर जो नहीं था, जो भी अभी जो वर्किंग वुमन है, बैंक में, पोस्ट में, आईटी में काम कर रहे हैं, तो लगातार 6-7 घंटा एक ही आसन पे बैठना। गुरु सलील पानात, जो पानी डाइजेस्ट होने के लिए गुरु है, जिसमें हार्ड वाटर कह सकते हैं, ऐसे पानी का सेवन करना ज्यादा, और वेग उदीरण करना, वेग विनिग्रह अवरोध करना, ये सब हेतुओं के साथ साथ अगर गर्भपात, गर्भोत्पीड़न, विषम प्रसूति ये भी होता है, तो फिर ऐसे स्त्रियों में ये होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि सभी स्त्रियों में सगर्भावस्था या सूतिका अवस्था में अर्श की उत्पत्ति हो जाती है, कोई विशिष्ट अवस्था में ही होने की संभावना है। जैसे कि मैंने कहा था इनिशियल लेक्चर में कि जिस स्त्री को पहले से बिफोर प्रेगनेंसी ही अर्श की उत्पत्ति हुई है, तो फिर उसको और तकलीफ होने की संभावना है, या सूतिकाल में भी फिर से वो उत्पन्न होने की संभावना है। तो इस प्रकार से हमें हेतु का विचार करना चाहिए। जब पेशेंट आती है तो उस प्रकार से हमें उसकी हिस्ट्री लेना जरूरी है। अगर हम देखें प्रकार भी, तो जैसे कि बाकी के भी रोगों के मिलते हैं, वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्व, सान्निपातिक, ये तो हमें मिल जाते हैं। कभी कभी सहज भी होते हैं। गर्भिणी काल में अगर ऐसे ही पेशेंट में सब ये हेतु रहते हैं, तो ऐसी ही अग्नि, मंद अग्नि रहना और वायु का अनुलोम न रहने की वजह से बच्चे में भी सहज अर्श की उत्पत्ति हो सकती है, या फिर उत्तर कालज, मतलब जो सहज नहीं है, बाद में निर्माण होने वाले। और उसके बाद 2 टाइप और है, जिसमें शुष्क और सरक्त, ये भी हमें दिखाई देते हैं। फिर भी चरकाचार्य हमें कहते हैं, प्रायण वात बहुलानी अर्शांसी भवंती अति श्रुते रक्ते दुष्टेपि च कफ पित्ते तस्माद अनिलोधिको ज्ञेयः, कि सर्व जो अर्श है उसमें हमें वात प्रधानता ही ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि जो रक्तस्राव होता है, रक्त अर्श जो होता है, उसमें भी अति रक्त की अधिक मात्रा अगर निकल जाए या फिर कफ और पित्त की अधिक मात्रा में दूषित होते हैं, तो वात का कोप अवश्य हो जाता है, धातुक्षय जन्य वात प्रकोप भी हो जाता है। तो इसीलिए प्रायः सभी अर्श वात प्रधान होते हैं। तो ये भी हमें चिकित्सा करने के दरमियान
ध्यान में रखना है। गर्भिणी अवस्था, प्रसव अवस्था और स्वीतिका अवस्था भी वात प्रधान अवस्था ही है, तो इसीलिए हमें ये सब अवस्था में वात शामक चिकित्सा करना जरूरी है, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी सभी कोई भी अगर हम मॉडर्न डिजीज देखे या कोई भी, तो उसमें डायरेक्ट रूप दिखाई देते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक संहिता या आयुर्वेदिक ज्ञान पंचक का जो एक वैशिष्ट्य है, जिसमें पूर्व रूप हमें दिखाई देते हैं। पूर्व रूप का, हर व्याधि का पूर्व रूप हमारे संहिता में वर्णन किया गया है। तो जब प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट बार बार अन्न विष्टंभ, दौर्बल्य, आटोप, कार्श्य, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, शक्तिसाध है, उद्गार बाहुल्य है, पेट बराबर साफ नहीं हो रहा है, अल्पविटकता, ऐसे लक्षण अगर बार बार कहती है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। उसके अग्निमांद्य के लिए हमें काम करना है, उसको वायु अनुलोमन रहे उसके लिए काम करना है, ताकि बाद में जाके उसमें अर्श की उत्पत्ति ना हो। अगर हम चिकित्सा सूत्र देखें तो हमें ये सूत्र मिलता है, व्यत्यासात मधुर अम्लानि शीतोष्णानि च योजयेत् नित्यम अग्निबलापेक्षी जयति अर्षः कृतांगदात् यद वायुरनुलोम्याय यद अग्निबल वृद्धिः अन्नपान औषध द्रव्यम तत्सेव्यम नित्यमर्षसे ही। तो बार बार मैं जैसे ये कह रही हूँ कि ये तीनों स्त्री विशिष्ट अवस्थाओं में अग्नि का मांद्य रहता है और वात की गति बिगड़ी हुई रहती है या वात का कोप रहता है, इसीलिए हमेशा हमें ऐसे अन्न, पान और औषध का उपयोग करना चाहिए जिसमें अग्निबल बढ़े, वायु का अनुलोमन हो और अग्निबल की अपेक्षा से मधुर और अम्ल का और शीत और उष्ण का व्यत्यासात प्रयोग हमें करना है। जैसे कि अगर जठराग्नि बहुत तीक्ष्ण है तो मधुर रस पहले यूज कीजिए, जठराग्नि मंद है तो पहले अम्ल रस यूज करना है। इस प्रकार से हमें नित्यम अग्निबलापेक्षी जयति अर्षः, तो अग्निबल के सापेक्ष में हमें चिकित्सा का सूत्र तैयार रखना है। अभी जो जो मैं यहाँ कह रही हूँ आप ध्यान से सुनिए। जो जो ऐसे कोई चीजें हैं कि वो दोनों अवस्था में उपयोगी होगी, गर्भिणी और सूतिका में, और कोई चीजें सिर्फ गर्भिणी में उपयोगी होगी या कोई चीजें सिर्फ सूतिका अवस्था में उपयोगी होगी। अगर ऐसे स्पेसिफिसिटी है तो मैं जरूर इधर मेंशन करूंगी, अगर मेंशन नहीं करती हूं तो सब चीजें दोनों अवस्था में हम यूज कर सकते हैं। अभी संहिता में कुछ हमें योग मिलते हैं, जैसे कि विबंध नाशक योग। स्त्रियों में अगर ऐसी अवस्था है तो हम शुंठी, पाठा, दाड़िम स्वरस के साथ या पाठा चूर्ण सिर्फ गुड़ के साथ, यवक्षार और गुड़ के साथ, यवक्षार जो है वो गोघृत और गुड़ के साथ देना है। लेकिन अभी इधर मैं कह रही हूँ क्षार जो है वो गर्भिणी में वर्ज्य है, तो ये जो विबंध नाशक योग है गोघृत, यवक्षार और गुड़ का, वो हम सूतिका में यूज जरूर कर सकते हैं, लेकिन मात्रा कम रखेंगे। लेकिन यही यूज करना ही है ऐसी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि क्षार का उपयोग करना है तो सूतिका अवस्था में करें, अदरवाइज यू कैन अवॉइड क्षार। लेकिन बाकी यूज कर सकते हैं, जैसे शुंठी, पाठा, दाड़िम है, ये यूज कर सकते हैं। वायु और मल दोनों का अनुलोमन होने के लिए अजमोदा, शुंठी, पाठा, गुड़, दाड़िम रस, सेंधव और तक्र, ऐसा उन्होंने योग कहा गया है। ये ग्रंथोक्त योग है, ये दोनों अवस्था में यूज कर सकते हैं, तो इससे मल का अनुलोमन होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि तक्र जो है उसका आप इस्तेमाल ज्यादा करें और ये सिर्फ अजमोदा, शुंठी, पाठा, गुड़, दारिम स्वरस और सेंधव के साथ दे सकते हैं। जिसमें वेदना ज्यादा हो तो उसमें पाठा धमासा, ये तो बहुत फेमस योग है। पाठा इज कॉमन इन ऑल द अर्श योगास, सो पाठा आपको याद रखना है हमेशा। तो पाठा एंड धमासा, पाठा एंड अजमोदा, पाठा एंड बिल्व, पाठा एंड शुंठी, तो ये जो है वेदना ज्यादा होने में
आप जरूर यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे दाड़िम स्वरस भी कहा है, ये बाकी भी आप योग जो है यूज कर सकते हैं। अनुपान के लिए भी यूज कर सकते हैं। अनुपान के लिए दूसरे भी द्रव्य है जो कहे गए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मदिरा शार्करम जातम सीधूम तक्रम तुषोदकम अरिष्टम दधिमंडम वा श्रुतम व शिशिरम जलम। अभी इसमें सब चीजें हम गर्भिणी अवस्था में नहीं यूज कर सकते, जैसे कि मदिरा है या अरिष्ट है, जो अल्कोहल कंटेंट वाले जो द्रव्य है वो गर्भिणी में नहीं यूज कर सकते, लेकिन अल्प मात्रा में कर सकते हैं कभी कभी, अगर बहुत ही इंडिकेशन ऐसे वेदना का हो तो, अदरवाइज यूज करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सुतिका अवस्था में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्भिणी में अवस्था में करना है तो हम तक्र यूज कर सकते हैं, दधिमंड यूज कर सकते हैं, शिशिर जल है, शुंठी धान्य जल है, कंटकारी का क्वाथ है। तो ये जो चीजें हैं ये आप जरूर यूज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे पेशेंट आते हैं तो उसके हिसाब से, जैसे उसको विबंध है तो ये योग यूज कीजिए, अनुलोमन के लिए ये करे, वेदना है तो ये करे, वेदना नहीं है तो ये मत यूज करिए। तो इसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्थानिक चिकित्सा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक मेडिसिन, बहुत नौशिया है, हाइपरेमेसिस भी है, तो ओरली दवा नहीं दे सकते हैं या पेशेंट नहीं ले पाती है, तो हम स्थानिक चिकित्सा के ऊपर भी उतना ही हम ध्यान दे सकते हैं। उसमें जो है वो लेप है, स्वेदन है, धारा है, अवगाह है, धूम प्रयोग है। तो ऐसे स्थानिक चिकित्सा का हम जरूर यूज कर सकते हैं। जो हम गर्भिणी और इसमें दोनों में कर सकते हैं वो है हरिद्रा चूर्ण संयुक्तम सुधाक्षीर प्रलेपनम। तो हरिद्रा चूर्ण का जो अर्क क्षीर के साथ या सुधाक्षीर के साथ प्रलेपन करें वो भी चलेगा, या सिर्फ आप हरिद्रा चूर्ण का भी यूज कर सकते हैं। हरिद्रा चूर्ण घृत के साथ भी लगा सकते हैं, जात्यादि घृत का लेप लगा सकते हैं, सिर्फ हरिद्रा चूर्ण का लेप लगा सकते हैं। सो इस प्रकार से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप लेप लगा सकते हैं। देन स्वेदन जो है वो भी जरूर कर सकते हैं। पिंड स्वेद कहा है, रासना, शुष्क मूलक और वासा का पिंड बना के उसका स्वेदन करने के लिए कहा है। मॉडर्न मेडिसिन में मैक्सेल्फ के पैड लगा देते हैं, ग्लिसरीन मैक्सेल्फ के पैड्स होते हैं वो लगाते हैं, तो उससे भी स्वेदन होता है। कुष्ठ तेल का धारा, अगर आप कुष्ठ सिद्ध तेल बना दिए, उसका सीरीज में लेके आप कोष्ण तेल की धारा कर सकते हैं, उससे वेदना बहुत जल्दी कम हो जाती है। देन जो सीड्स बात सबको पता है, तो उसमें अवगाह स्वेद हमारे इसमें भी सब अर्श अध्याय में आया है। दोनों शुष्क अर्श और रक्तार्श दोनों में भी अवगाह स्वेद उपयोगी कहा है। और अगर आप देखें तो सूतिका अवस्था में भी अगर आप देखें तो द्रोणी स्वेद अवगाह काश्यप संहिताओं ने लिखा है। तो अवगाह स्वेद सभी अवस्था मतलब सूतिका अवस्था में कर सकते हैं, गर्भिणी अवस्था में भी कर सकते हैं। उसके लिए कोष्ण दशमूल क्वाथ है, बदर पत्र का क्वाथ है, तो ये अगर आप यूटिलाइज करें तो उसका पेन और कम होगा। धूम प्रयोग भी कहा गया है, अर्कमूल का, विडंग का। जैसे अगर बहुत पिच्छिलता हो, क्लेद ज्यादा हो, पस निकल रहा हो, तो इस प्रकार से हम विडंग, देवदार, उसका निम्ब पत्र का धूम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन धूम प्रयोग जो है वो गर्भिणी में नहीं करना है। सूतिका में तो वैसे भी हम धूम प्रयोग करते ही हैं। जैसे कि विटप छेद जो है वो वर्ण है, वो वर्ण जो है उसका हीलिंग करने के लिए, उसका सूतिका जो है वो क्लेद प्रधान रहती है, तो उसका क्लेद कम होने के लिए, योनिगत क्लेद कम होने के लिए, वैसे ही गुदगत क्लेद कम करने के लिए धूम का प्रयोग हम कर सकते हैं। और वो सूतिका अवस्था में करना है, गर्भिणी में नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो चिकित्सा जो मैं खुद भी ज्यादा करती हूँ, गर्भिणी में भी करती हूँ, जनरल भी करती हूँ और सूतिका अवस्था में भी करती हूँ, वो है जलौकावचरण। तो दिस इज द
बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी अवस्था, कोई भी अवस्था में, नॉन प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, सूतिका, वृद्धावस्था, सुकुमार, किसमें भी अगर पेशेंट आते हैं तो उसमें रक्तावसेचन सूची वेद से या जलौका से करना है। सूची वेद से अच्छा जो है वो जलौका है, क्योंकि सुकुमार रुग्णों में, स्त्रियों में, गर्भिणी में, सब सुकुमार अवस्थाएं हैं, उसमें जलौका कर सकते हैं, जलौकावरचरण। उससे इमीडिएट रिलीफ पेशेंट को मिलता है। तो ये बार बार भी सिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि हमने ग्रेड्स देखे थे, 3rd, 2nd, ऐसे अगर ग्रेड वाले अगर फाइल्स है तो उसमें हमें जरूर जलौका उच्चारण करना है। गर्भिणी अवस्था में भी बहुत करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो रक्त के दुष्ट हो जाने पर उन्होंने क्या कहा है, संचितम दुष्ट रुधिरम तथा संपद्यते सुखी शीतोष्ण स्निग्ध वृक्षैः ही न व्याधिर उपशाम्यति। जैसे कि शीत, उष्ण, ऐसे कौन से भी वीर्य का चिकित्सा से, स्निग्ध वृक्ष चिकित्सा से व्याधि को शांति नहीं होती है। तो रक्त का दुष्ट होना समझकर हमें रक्त का निकाल देना ही लाभकर होता है। तो इसमें क्या होता है, मस्सों में संचित हुआ विकृत रक्त जो है वो इससे बहकर निकल जाता है और पीड़ित व्यक्ति का वेदना जो है वो इमीडिएट कम हो जाती है। तो ये बार बार भी हम जरूर कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े और 1-2 योग जो है वो आए हैं। सगुणाम अभया वापी प्राशेत पर्व भक्तिकम, जैसे अपान काल में खाने से पहले हमें त्रिवृत चूर्ण त्रिफला रस से साथ दे सकते हैं, या हरित की चूर्ण गुड़ के साथ दे सकते हैं। वैसे हरित की गर्भिणी अवस्था में निषिद्ध कही गई है, लेकिन अल्प मात्रा में आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन सूतिका अवस्था में तो आप आराम से दे सकते हैं। गुड़ और अभया का कल्प अगर हम संधान किया हुआ अभयारिष्ट भी यूज कर सकते हैं। कंकाइन गुटी में भल्ला तक है, इसलिए वो गर्भिणी में यूज नहीं करेंगे, लेकिन अभयारिष्ट और कंकाइन गुटी हम सूतिका अवस्था में जरूर यूज कर सकते हैं। और हरित की तक्र के साथ देना, अजमोदा और चित्रक, अभी चित्रक भी है वो गर्भिणी में नहीं यूज करेंगे, लेकिन सूतिका अवस्था में यूज करेंगे। लेकिन गर्भिणी में जो अतिसार रोगाधिकार में आया हुआ पाचन चूर्ण है, बिल्व और शुंठी, या अजमोदा और चित्रक, या हरित की और तक्र, ये यूज कर सकते हैं। जब पेशेंट को बार बार पिच्ची द्रवमल हो रहा है और इसके साथ साथ वेदना भी है, अर्श भी है, तो पाचन चूर्ण जो है तो बिल्व शुंठी का हम योग इस्तेमाल कर सकते हैं। हरित की तक्र के साथ भी यूज जरूर कर सकते हैं। उसके साथ जो आया है अनुवासन बस्ती प्रयोग, तो इसका भी मैं बहुत यूज करती हूँ। तो अनुवासन के बस्ती प्रयोग में उन्होंने क्या कहा है कि जो अवस्था में उदावर्त की अगर अवस्था है तो हमें जरूर उसमें बस्ती का उपयोग जो है वो करना है। तो निरुह भी उन्होंने कहा है, सक्षीरम दाशमूलिकम समूत्र स्नेह लवणम कलकेर युक्तम फलादि भी। तो अगर गर्भिणी अवस्था में देना है तो 8वें महीने के बाद हम निरोह भी दे सकते हैं, लेकिन 7वें महीने तक हम अनुवासन का ही बस्ती प्रयोग करेंगे जरूरत पड़ने पर। लेकिन 8वें महीने के बाद निरोह बस्ती का विधान आया है। अगर जरूर है, उदावर्त अगर हमें दिखाई दे रहा है तो दशमूल के क्वाथ का निरोह बस्ती हम जरूर दे सकते हैं। गोमूत्र उसमें यूज ना करें, लेकिन लवण और स्नेह डाल के हम दशमूल का थोड़ा मृदु कम मात्रा में भी निरोह दे सकते हैं। तो अंदाज लेके हमें ये प्रयोग करना है। उसके बाद जो है तो मेरे ख्याल से ये सबने लिया होगा, लेकिन 1-2 मिनट में उसके ऊपर बोलना चाहूंगी कि तक्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ भेषज कहा गया है। अन्न भी है और भेषज भी है। तो तक्र का इस्तेमाल अगर हम गर्भिणी परिचर्या में पहले दिन से अगर करते हैं, जैसे सिद्ध तक्र, जैसे जीरक चूर्ण डालने के लिए बोलिए, पुदीना डालने के लिए बोलिए, शुंठी चूर्ण, अदरक सिद्ध तक्र अगर गर्भिणी लेती है
तो उसका वायु अनुलोमन अच्छा रहेगा। लेकिन दधि और तक्र का निषेध जो है वो सूतिका अवस्था में है, इसीलिए सूतिका अवस्था में हम ये यूज नहीं करेंगे, लेकिन गर्भिणी अवस्था में तक्र का प्रयोग हम जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाजा शक्तु भी कहा है, तो लाजा शक्तु का जो है वो हम सुक्तिका अवस्था में करेंगे। तो ये जो कहे हैं इसमें तक्र जो है वो 3 प्रकार के हैं, रुक्ष, अर्ध उद्धृत स्नेह तक्र और अनुद्धृत घृत, मतलब मक्खन निकाला हुआ, मक्खन आधा निकाला हुआ और मक्खन पूरा निकाला हुआ तक्र जो है वो हमें यूज करना है। तो मक्खन जो है ये भी बड़ा बहुत यूजफुल मेडिसिन है, आहार्य द्रव्य भी है। तो अगर हम गर्भिणी परिचर्या देखें तो उसमें चौथे मंथ में नवनीत का सेवन करने के लिए कहा है। चौथे मंथ से ही गर्भ का वजन बढ़ना जो है वो शुरू हो जाता है, रेक्टम पे प्रेशर थोड़ा थोड़ा आना चालू हो जाता है। तो मक्खन से दोनों तीनों चीजें हमारी होती है। एक तो बच्चे का जो है गर्भ का हृदय की विकास होने के लिए भी नवनीत का उपयोग ज्यादा अच्छा होता है, और उसके साथ साथ स्नेहन जो है गर्भिणी का वो भी अच्छा होता है, मज्जा स्नेह भी बढ़ता है। तो उसकी वजह से नवनीत का नियमित रूप से सेवन या तक्र सेवन हमें गर्भिणी परिचर्या में उसको जरूर बताना है। उसके साथ साथ यूष है, मांसरस है, ये भी देना है। और इन्होंने एक जो कहा है कि सप्ताहम, दशहम, पक्षम, मासम अथापि, इतने दिन भी तक्र का सेवन करना अच्छा है। और कालक्रमज्ञा सहसा नच तक्रम निवर्तेत, एकदम से तक्र का अगर ऐसे सप्ताह में अगर पेशेंट ले रही है तो इमीडिएट तक्र बंद मत करे, धीरे धीरे उसका सहसा त्याग नहीं करना है, एकदम त्याग नहीं करना है, धीरे धीरे हमें करना है। उसके साथ साथ आहार में पेया जो है, अगर पेशेंट को भूख कम लग रही है तो उसको न्याहारी में नाश्ते में पेया लेने के लिए बोलिए। उसके साथ शुंठी, धान्य, पाठा सिद्ध दे सकते हैं गर्भिणी में, और पिपरी, पिप्पल मूल, चित्रक जो है वो सूतिका में। खड़यूष, शुष्क मूलक, कुलथ, ये भी हम सूतिका अवस्था में दे सकते हैं। सिद्ध घृत, यवागु, मौसर से सिद्ध पेया, ये हम गर्भिणी में भी दे सकते हैं। और जब पेशेंट आती है उसको रक्तार्श है तो हमें ये चिकित्सा सूत्र फॉलो करना है। अग्निसंदीपनार्थम च रक्त संग्रहणाय च दोषाणाम पाचनार्थम च परम तिक्ते रूपाचरित, तो तिक्त रस का उपक्रम हमें इसमें करना है, जो कि गर्भिणी और सूतिका दोनों अवस्था में हितकारक है। तो और ये जो है स्नेह साध्य है, पान, अभ्यंग, अनुवासन, क्योंकि जो दोष रक्तस्राव जो होता है उसमें धातुक्षय जन्य वात प्रकोप जो बढ़ता है, उसमें हमें ऐसे वात प्रकोप में वात की चिकित्सा स्नेह साध्य होनी चाहिए। स्नेह से वात ज्यादा जल्दी शमन हो जाता है। और अगर ग्रीष्म ऋतु है, घर्मकाल है और रक्तस्राव ज्यादा होता है तो उसमें हमें रक्त स्तंभन पहले ही करना है। ग्रीष्म ऋतु में बल और कम हो जाता है, और उसके साथ साथ अगर रक्तस्राव भी ज्यादा हो तो वो स्तंभन के योग्य होता है। रक्त संग्रहण योग जो कुछ संहिताओं में आए हैं और जो हम ये दोनों अवस्था में यूज कर सकते हैं वो है कुटजत्वक, शुंठी क्वाथ, और उसके साथ गोघृत भी लेना है। तो आप सब रक्त संग्रहण योग अगर देखते हैं तो उस सब में गोघृत का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ओनली क्वाथ नहीं देना है। दाढ़िमत्वक, शुंठी, रक्तचंदन और गोघृत, दारू हरिद्रा, दालचीनी, उशीर, निम्बत्वक का क्वाथ और गोघृत, ये 3 योग है। और रक्तार्श में कभी कभी ऐसे मैंने जैसे कहा गर्मकाल है, ग्रीष्मकाल है, और या फिर कभी कभी पेशेंट को रक्तस्राव ज्यादा होता है और तृष्णा डेवलप हो जाती है, तो उसमें तंडुलोदक देना जरूरी है और शहद के साथ, तो इमीडिएट तृष्णा शमन होगा। लाजा मंडा भी दे सकते हैं, उससे भी तृष्णा शमन जल्दी होगा। तो इस प्रकार से हमें आहार्य कल्पों के साथ ही गर्भिणी अवस्था में ट्रीटमेंट करना जरूरी है। और उसके साथ साथ जो घृत और भी यूज कर सकते हैं वो है दाढ़ीमादी है, शतावरियादी, चांगेरी, यष्टि घृत है। और एक रक्तस्राव अगर अति मात्रा में है तो उसके में हम नागकेशर, पाठा, नीलकमल भी, उस इंद्रयव जो तिक्तरस प्रधान है, इसका सिद्ध घृत तैयार करके गर्भिणी को जरूर दे सकते हैं। अगर अग्नि कम है
तो कम मात्रा में देना है, तो अग्नि की अपेक्षा से ही घृत देना है। इसके साथ साथ नवनीत का, जैसे मैंने कहा था, नवनीत का भी उपयोग ग्रंथकारों ने कहा है। नवनीत तिलाभ्यासात केशर नवनीत शर्कराभ्यासात दधिसर मचिताभ्यासात अर्शावसी आपयंती रक्तानी। तो कृष्ण तिल और नवनीत जो है, तिल जो है वो उष्ण रहते हैं, गर्भिणी में नहीं देंगे, लेकिन सुतिकावस्था में कृष्ण तिल और नवनीत दे सकते हैं। गर्भिणी अवस्था में नाग केशर नवनीत सीता दे सकते हैं। उसके साथ साथ अवगाह, जिसमें रक्तस्राव अगर ज्यादा हो रहा है तो यष्टि वासा पंचकल बलकल निम्ब अर्जुन त्वक का क्वाथ या थोड़ा गुनगुना करना है, ये गर्म ज्यादा नहीं करना है, या फिर शीत भी क्वाथ करके उसमें अवगाह करना है। देन लेप के लिए दुर्वा घृत, जात्यादि घृत, यष्टि घृत, शतधौत घृत, सहस्रधौत घृत इसका इस्तेमाल करेंगे। घृतमंडका बस्ती, यष्टि घृत, यष्टि तैल, जात्यादि घृत, जात्यादि तैल, या फिर मोश रस का पिच्चा बस्ती, ये भी हम जरूर यूज कर सकते हैं अगर उतनी अवस्था है। बस्ती हमें अगर बहुत ही पेशेंट की अवस्था ज्यादा वेदनादायी है तब यूज जरूर करना है। आहार में लाजा पेया, कृष्ण द्राक्षा का क्वाथ जैसे काया मनुकांचा काढ़ा, देन बकरी का दूध, ये भी बहुत उपयुक्त है। पलांडू जो है वो उन्होंने कहा है, जैसे कांदा प्याज, श्वेत पलांडू, सफेद प्याज जो रहता है वो बहुत ही उपयुक्त है। तो खाने में हम उसको पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप प्याज जरूर सेवन करें, लेकिन प्याज ठंडा है, ये सूतिका में नहीं चलेगा, गर्भिणी अवस्था में चलेगा। तो ये बीच बीच में आप जरूर उसको बाइफरकेट करना है। सभी द्रव्य जो है आहार है, सभी अवस्था में नहीं चलेंगे, गर्भिणी में कुछ अलग चलेंगे, सूतिका में अलग रहेंगे। सो गर्भिणी का अभी अभी इसके पहले भी मेरा ये श्रेयस एकेडमी में लेक्चर हुआ था श्वास के ऊपर, पिछले महीने शायद। तो जो गर्भिणी को व्याधि होते हैं उसमें एक सामान्य चिकित्सा सूत्र रहता है, जो मैंने श्वास के टाइम पे भी कहा था कि कोई भी चिकित्सा करे तो हमें गर्भिणी में तीक्ष्ण औषध नहीं इस्तेमाल करना है। हमें गर्भ और गर्भिणी के बल की रक्षा करते हुए हमें गर्भिणी की चिकित्सा करनी है। तो जैसे विरेचन नहीं देना है तो फलवर्ती यूज करना है, वमन नहीं देना है तो निष्ठीवन चिकित्सा करना है। ऐसे प्रकार से हमें वो याद रखना है। तो ये जो है वो सामान्य चिकित्सा सूत्र है कि जिसमें अभी इसमें न रक्तावसेचनम ऐसा कहा है, इसीलिए सिराव्यद हम पेशेंट में नहीं करते हैं, गर्भिणी में या सूतिका में। हम जलोकावचरण कर सकते हैं क्योंकि उसकी मात्रा बहुत कम रहती है और वो स्थानिक रहता है और तत्काल उपचार देने वाला वो है। तो इस प्रकार से रक्तावसेचन बड़ी मात्रा में नहीं करेंगे, लेकिन जलोकावचरण कर सकते हैं। और मृदु मधुर शिशिर सुखे ही ऐसा औषध आहार और विहार हमें यूज करना है जो भी मधुर हो, मृदुवीर्य हो, गर्भ और गर्भिणी के विरुद्ध ना हो। अभी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि काश्यप चिकित्सा में अर्श के बारे में या ऐसा उपद्रव में श्रुतिका रोग में अर्श का हमें जो ये है उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है, लेकिन हमें दो गर्भिणी व्याधि में दो उल्लेख मिलते हैं। एक है गुद वेदना और दूसरा है परिकर्तिका। तो ये हमें जो दो उल्लेख है ये हमें मिलते हैं। तो इसमें गुद वेदना अगर हम देखें तो ये हमें अर्श के पूर्व रूप में भी दिखाई दे सकती है या फिर अर्श होने के बाद भी दिखाई दे सकती है। तो सिर्फ गुद वेदना के अंदर हमें ये श्लोक मिलता है कि उसमें उन्होंने कहा कि गुदा से कष्टपूर्वक रक्त आने पर, गुदा में वेदना होने पर पाषाण के पात्र में तप्त दुग्ध का यष्टि मधु के साथ सेवन करना चाहिए, या फिर घृतमंड का बस्ती, अनुवासन बस्ती देना चाहिए। तो अनुवासन बस्ती हम जरूर यूज कर सकते हैं गर्भिणी में। तो ऐसे उल्लेख हमें मिलते हैं। उसके बाद परिकर्तिका का हमें उल्लेख मिलता है काश्यप संहिता खिलस्थान में,
चिकित्सा स्थान में भी उसके थोड़े से उल्लेख है काश्यप संहिता में, जिसमें ज्येष्ठ मत का उल्लेख बार बार आता है। तो बिना सोचे समझे अगर आपको बाकी कुछ अगर सूझ नहीं रहा हो तो ज्येष्ठ मत आप उसमें जरूर यूज कर सकते हैं, मधुक के साथ या फिर फाणित जैसे काकवी शुगर ये शर्करा के साथ, या ज्येष्ठ मत के फांड के साथ, या फिर गोघृत के साथ, या फिर तंडुलोदक के साथ। तो इसका अगर आप ऐसे इस प्रकार से अनुपान के साथ ले सकते हैं। पैतृक परिकर्तिका में तंडुलाम्बुना ऐसे मतलब तंडुलोदक का उल्लेख आया है। देन शहद का उल्लेख श्लेष्मिक परिकर्तिका में आया है, जिसमें कंटकारी, श्वदष्ट्रा, अश्वत्थ को समान मात्रा में नमक मिलाकर भोजन के साथ भी आप दे सकते हैं। तो अन्न कल्पना का भी यूज कर सकते हैं। जो गर्भिणी या सूतिका दवा नहीं ले पा रही है तो उसमें अन्न कल्पना में भी या पान अर्थ दे सकते हैं, अन्न कल्पना में भी दे सकते हैं। तो युक्ति पूर्वक आपको सब भेषज कल्पना का ये करना है। तो फिर से मैं दोहराती हूँ, बार बार बीच में कहा भी है, लेकिन गर्भिणी अवस्था में निषिद्ध उपक्रम कौन से हैं? तो क्षार प्रयोग, कोई भी आभ्यंतर स्थानिक क्षार यूज नहीं करेंगे, क्षार सूत्र का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सूतिका अवस्था में भी क्षार सूत्र नहीं करेंगे, करना है तो 3 या 4 महीने के बाद क्षार सूत्र करेंगे। सूतिका अवस्था में, गर्भिणी में कभी भी नहीं करेंगे। धूम प्रयोग नहीं करेंगे। योगासन जो है उसमें बलासन चाइल्ड पोज है वो नहीं करेंगे। तीक्ष्ण औषधि में भल्लात गुग्गुल युक्त कल्प जो है यो गर्भिणी अवस्था में यूज नहीं करेंगे। सो सूतिका परिचर्या का परिशिष्टि हमें पता है कि सूतिका रोग शांतर्यम कुर्याद वात क्रिया, तो वात हर कल्प हमें ही सूतिका रोग में यूज करना है। तो इस प्रकार से मैंने एक चार्ट तैयार किया था सूतिका आहार में। तो यही सब आहार हम इस प्रकार का आहार हम जरूर यूज करते हैं। आहार इसमें भी सूतिका में अगर अर्श हो या नहीं होना हो तो एज अ प्रिवेंशन या फिर क्यूरेटिव दोनों के लिए ये आहार हम कफवात प्रधान या वात पित्त प्रधान ऐसे 2 प्रकार के सूतिका करके उसमें हम जरूर यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इसको फोटो इसका निकाल कर लीजिए। इसके बारे में ज्यादा बोलना ये नहीं है, आपको पता भी है, लेकिन यू कैन टेक अ फोटो। देन एक्सरसाइज, तो सूतिका अवस्था में और गर्भिणी अवस्था में कीगल एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जैसे कि ये आपको एनएस के मसल्स जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट और एनल मसल्स एज इफ यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम पासिंग गैस। तो ये जो एनल स्फिंक्टर जो है वो उसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। इससे क्या होगा, यू कैन स्ट्रेन पेशेंट के जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स है वो स्ट्रेंथ हो जाएंगे, उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, एनल स्फिंक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये 2-4 बार थ्रू आउट डे में करना है, गर्भिणी में भी और सूतिका में भी। दिन योगासन जो है, जैसे मैंने कहा था, ये जो फर्स्ट जो है फर्स्ट लेफ्ट थंडरबोल्ट वज्रासन, इसको हमें जरूर पेशेंट को दोनों अवस्था में कहना है, बिकॉज वज्रासन से डाइजेशन को हेल्प मिलती है। देन कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है, पेल्विक मसल स्ट्रेंथ हो जाते हैं। सो वी कैन advise the patient for regular exercise and yogasanas because they help in improvement, they help and improve the digestive health and encourage the regular bowel movement. So ये हमें बताना है। देन तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, देन बद्ध कोणासन जो थर्ड पिक्चर राइट साइड ऊपर वाला। तो ये सब आसन हमें सूतिका अवस्था में कर सकते हैं। एंड जो बलासन है, सिर्फ जो नमाज पोज जो है, नमस्कार और द चाइल्ड पोज, ये फर्स्ट 3 मंथ्स में प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे पेट बढ़ता है तो हम नहीं कर पाएंगे, वो नहीं करेंगे, सूतिका अवस्था में करेंगे। लेकिन बाकी ये चारों आसन जो है वो सूतिका अवस्था में जरूर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 1 घंटा मुझे दिया था, थोड़ा आगे चला गया है। जितना हो सके मैंने डिटेल में लेने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से हिस्ट्री, देन लोग
लोकल एग्जामिनेशन और गर्भिणी और सूतिका का जो भी आहार है, ये सब विचार करके हम ज्यादा से ज्यादा आहार पे ध्यान देंगे, कम से कम दवा इस्तेमाल करेंगे, अगर करना है तो आहार, डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देंगे। और आहार में भी जैसे मैंने कहा है, खड़ यूज है, तक्र का यूज है, ये सब ज्यादा हम उसको एडवाइस करेंगे। और जरूरत पड़ने पर स्थानिक चिकित्सा करेंगे, जैसे कि लेप है, जलौकावचरण है, अवगाह स्वेद है। तो उसके बाद भी रिलीफ नहीं होता है तो हम दवा जो हमने कही गई है वो कर सकते हैं। और इससे भी नहीं होता है तो बस्ती का उपचार करेंगे। उससे भी नहीं होता है तो बाद में हम शस्त्रक्रिया का जो ऑप्शन है हमें आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस प्रकार से हम ट्रीटमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से श्रेयस ई लर्निंग एकेडमी का आभार करना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे आज फिर से यहाँ मौका दिया मेरे विचार प्रदर्शित करने के लिए। सो धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर ऋषिकेश, डॉक्टर मंगेश देशपांडे सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you very much, madam. It was, as usual, a very nice, elaborative, and knowledgeable presentation. It is very difficult sometimes to manage sensitive cases like Garbhini and Sutika and anorectal disorders in a trio. It is very difficult to convince the patient for biopchar, as you mentioned, and many of these cases can be saved from surgical intervention as well if very well planned, and the treatment protocol that you elaborated today would be very beneficial for our delegates. Thank you again. Thank you from Shreyas e-learning team for accepting our request and delivering such a nice lecture. Thank you very much, madam. Hello, madam. There is a question in the chat box. Should I read it out? Hello. Yes. I can read. Yes. 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 Second and third grade hemorrhoid, where can be used Jaloka or above below dentate line is preferred. अभी जैसे कि गर्भिणी अवस्था है तो अबव और बिलो डेंटेट लाइन और प्रोलैप्स्ड अगर है हेमोरॉइड, तो इतना हमें डेंटेट लाइन पता नहीं चल जाती है ड्यूरिंग दैट प्रोलैप्स, बट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई wherever you get the site, and जलोका अगर हम छोड़ देते तो वो खुद ब खुद ही पकड़ लेती है। सो नथिंग टू वरी, आप आराम से सेकंड या थर्ड ग्रेड में लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। Yes, madam. एक ही है मेरे ख्याल से। There is one question on the thrown to the organizers end. Okay. Madam, how long Kegels exercise should be done, and from when it should be started during pregnancy? कीगल एक्सरसाइज कभी भी चालू कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी ऑल्सो, बिकॉज इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू द पेल्विक फ्लोर्स, सो इट हेल्प्स इन द डिलीवरी ऑल्सो। सो मतलब सभी लोग, कोई भी महिला नॉन प्रेग्नेंट हो, प्रेग्नेंट हो, सूतिका हो, कोई भी अवस्था में कीगल एक्सरसाइज अगर बार बार करते रहते हैं तो इट विल इंक्रीजेस द मसल टोन। सो कभी भी कर सकते हैं, एंड कितनी देर भी कर सकते हैं, कितना भी, जैसे जैसे बीच बीच में आपको याद आए, आप ऑफिस में है, जैसे अगर आप डॉक्टर है, खुद भी करती है, क्लिनिक में है या पेशेंट है, कहाँ भी है, कहीं पर भी आप जरूर कर सकते हैं। Yes. There is one more question. Are there any complications noted post Jalaukavacharan like bleeding? नहीं अभी, in conditions of Arsha? नो स्पेसिफिक अभी जो मैंने इतनी बहुत बार, मेरे पास तो इतने रहते हैं पेशेंट्स, लेकिन मैंने पेशेंट के फोटो नहीं डाले। ये जो अभी मैंने डाला था फोटो वो भी नेट से लिया था, क्योंकि पेशेंट आर लिटिल बिट
दे हेजिटेट ना कि नहीं लेना है पिक्चर, तो मैं वो ले नहीं पाई. अदरवाइज जलोकाचरण की इतनी पिक्चर्स है आराम से. और जो ब्लड जो रहता है, बिकॉज ड्यूरिंग जलोकाचरण क्या होता है, जो इसका हेरोडिन जो है विच इज एंटीकोएगुलेंट, विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ द लीचेस, तो वो जो है वो साथ में छोड़ देती है ना अंदर वो लोकल जगह पे, तो वो थोड़ा रक्तस्राव तो होता ही रहता है. तो जितना रक्तस्राव होगा उतना होने दीजिए. पेशेंट को कहे कि कितना भी हो जाए, 10-20 मिली से ज्यादा नहीं होता है. तो पेशेंट को और उसके बाद थोड़ा टैम्पून वगैरह रखना है आपको, हरिद्रा चूर्ण या लोध्र चूर्ण या कोई भी कषाय स्तंभनात्मक चूर्ण लगा के, अगर आप उसमें थोड़ा उसको कहे कि टैम्पून लगा के, पैड लगा के अगर उसको प्रेशर दे के रोके तो वो रुक जाता है. ऐसी कोई बात अभी तक तो कभी नहीं करनी पड़ी हैंडल, ये आराम से रुक जाता है. एक आधा घंटा जलव का गिरने के बाद समझो 5 या 10 मिनट तक थोड़ा ब्लड जा सकता है और उतना जाना भी चाहिए. यस मैडम, राइटली सेड. हाँ, लेकिन दिन भर नहीं जाना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट घर पे भी गई और दिन भर होता रहा, वो नहीं होना चाहिए. लेकिन हुआ भी नहीं, अभी इतनी बार लगा है, ऐसा कभी हुआ नहीं. तो मेरे ख्याल से अगर आप बराबर प्रेशर देके उसका ड्रेसिंग वगैरह करते हैं बाद में, तो मेरे ख्याल से नहीं होता है कुछ. Yes, madam. Yes, I think those were the questions. Okay. Yes, thank you again. Thank you very much from Shreyas e-learning team, and we will be expecting more of your knowledge and lectures in the upcoming seminars as well. Thank you very much, madam. Thank you so much. So leave करूँ ना अभी? Leave कर. Yes, ma'am. Yes, thank you. Thank you.